Hello friends, this is my fourth lecture of the newly launched channel Geotechnical Engineering Consultancy Tips in the series. What I wish to tell you all in this very lecture is how to decide the depth of investigation and the number of boreholes if we have to go in for geotech investigation of any overhead tank or ELSR, that is elevated surface reservoir or elevated storage reservoir, say water tank or sums. In the previous lecture of mine, actually I discussed about the method and the basis of deciding the geotechnical investigation depth and the number of boreholes for boundary walls, buildings, residences, multi-storied buildings, malls, etc. One thing I would like to tell you all is that in connection with my previous lecture, there can be another kind of a structure like multi-level parking or underground multi-level parking or any kind of multi-level parking which may be some floors, few floors beneath the ground water level or some or few floors above the ground level. So in that very case you can refer to my previous lecture. Now coming on to my overhead tank case. Depth of investigation basically depends on the type of the structure, its shape. Now the shape of the overhead tank generally is circular, but in few cases it may be square or rectangular. स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर ओवर टैंक्स स्टील के हमने बने हुए आप लोगों ने भी देखे होंगे कई जगह रेलवे कॉलोनीज में। अब बहुत पुराने टाइम में एंशियंट टाइम में इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बनते थे और अभी भी कहीं कहीं बनते हैं। कहीं कहीं ये टैंक्स वहाँ भी बनते हैं जब हमारा जहाँ पेट्रोलियम इंडस्ट्री होती है तो वहाँ स्टील टैंक्स बनते हैं ऑफ डिफरेंट शेप्स। तो नाउ माई थर्ड पॉइंट इज द लोड ऑफ द स्ट्रक्चर। लोड ऑफ द स्ट्रक्चर मीन्स द डेड लोड ऑफ द RCC, reinforced cement concrete structure of the overhead tank, which depends upon the capacity of the tank proposed, whether it be a 100 kL capacity or 1000 kiloliter capacity. The second one is the which the load to be taken into consideration is the weight of the water. अब क्या है कि हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि हमारा टोटल वेट उस ओवरहेड टैंक का कितना आएगा। तो क्या हुआ कि जैसे अगर 100 किलोलीटर का टैंक है तो 100 टन्स तो वाटर का वेट हो गया। स्मॉल टैंक्स में हम जनरली जो होता है सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर 80 to 100% और इसमें ऐड कर लेते हैं। लेकिन अगर यही बड़े टैंक्स होते हैं से 600, 700, 800, 1000 किलोलीटर और से 3000 किलोलीटर तो ये सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर एज ए थंब रूल मोटा मोटा, वैसे तो एग्जैक्ट चीज़ स्ट्रक्चर इंजीनियर आर इन अ बेटर पोजिशन टू एक्सप्लेन इट टू यू ऑल, वो हम 40 to 60% देते हैं। उसके बेसिस पे हम बेसिकली क्या हुआ कैपेसिटी और स्टेजिंग हाइट के साथ साथ ये जब हम लोड निकाल लेते हैं पॉइंट 3 पे जो हमने मेंशन करा है जो कि हमारा लोड ऑफ द स्ट्रक्चर है और वेट ऑफ वाटर है, इससे हम एंटिसिपेट करते हैं कि वहाँ प्रपोज्ड डायमीटर ऑफ फाउंडेशन हमारा क्या होगा, विच इन टर्न डिपेंड्स अपॉन द टोटल लोड which is the weight of the structure plus weight of the structure which I have just told you all. अब हमारा एक केस होता है कि depth of investigation refers to 1.5 to 2 times the diameter of the tank, means the least dimension of the tank, which may be in case of a square the size, this size, or in case of rectangle this may be the this, or in case of circular this may be the diameter. Okay, diameter D. अब this is what I am referring to plus the depth of foundation to be proposed for that very overhead tank. But it is not as simple as that. Why I am writing is कि it is not as it looks. इसके बारे में अपने नेक्स्ट बोर्ड में आपको भी बताऊंगा क्योंकि थोड़े से फैक्टर्स और हैं जो इस पर डिपेंड करते हैं। अब इस चीज़ को आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा कि बोरिंग नीड टू बी कंटिन्यू टू द स्ट्रेटम वेयर लोड्स ऑफ द प्रपोज्ड स्ट्रक्चर कैन बी कैरिड विदाउट एनी अनडिजायरेबल सेटलमेंट एंड shear failure.
बिकॉज जब हम साइट पे जाते हैं तो हमें अनफोर्सिन कभी कभी बिल्डअप सॉइल या लूज स्टार्टा मिलता है, लो एन वैल्यूज, स्टैंडर्ड कंडीशन टेस्ट वैल्यूज मिलती हैं। उस केस में हमें इस पॉइंट को विशेष कंसिडरेशन देना होता है। नाउ आई विल go over to my next board. Now over to my next board of the very same topic of overhead tanks. अब ये होता है कि in certain cases when we aren't able to find sufficient enough bearing capacity for that very overhead tank, we have to go for pipe foundations. In this case, I would suggest you all to follow to this principle that the depth of investigation required is at least 1.5 times the B of the structure from the bearing level, that is the toe of the pipe. This we all have to anticipate as judiciously as possible, being responsible citizens towards the structure to be constructed, जिसकी लाइफ हम जनरली 50-75 साल या 100 साल मान के चलते हैं। अब now, how to decide the number of boreholes? अब इसमें हमारा एक मिनिमम जो क्राइटेरिया है जो हमने अर्न करा है पिछले लास्ट 28 प्लस या 29 साल के अपने करियर में, तो हमें कहते हैं वैसे तो और हर ओवर टैंक में 3 बोरहोल्स आर रिक्वायर्ड, बट कुछ ऐसे कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिनकी वजह से हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। तो हम कहेंगे कि 25 किलोलीटर से 250 किलोलीटर में आप एक बोरहोल करिए मिनिमम, 251 किलोलीटर से 500 किलोलीटर में आप 2 बोरहोल्स करिए, 501 किलोलीटर से 1000 किलोलीटर कैपेसिटी के टैंक में आप 3 बोरहोल्स करिए, 1000 किलोलीटर टू से 3000, 4000 और 5000 किलोलीटर एक्सेट्रा के ओवर टैंक्स में वी नीड टू गो फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ एटलीस्ट 4 to 5 बोरहोल्स, बिकॉज इतने बड़े ओवर टैंक्स में हमें कोई भी अगर मैसिव वेरिएशन अलोंग द डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन हमें अगर फील्ड पे मिलता है तो उसको हम असर्टेन कर लेंगे। एंड इन दिस वेरी केस हम ओवर टैंक्स में कतई भी केस में रिस्क नहीं ले सकते। अब देखिए क्या है हमारा एक थोड़ा सा हम पार्ट अब की ऐड करते हैं इंटरेस्टिंग बनाने के लिए फ्रेंड्स, कि हमारा ये जो लेक्चर सीरीज़ है थोड़ा सा डेप्थ ऑफ इन्वेस्टिगेशन नंबर बोरोस को लेकर के, चूँकि कई तरीके के स्ट्रक्चर से हो सकता है थोड़ी लंबी चले, तो हमारा जो टेक्निकल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी टिप्स का एक मेन टॉपिक भी होता है कि हमें बेयरिंग कैपेसिटी निकाल के देनी होती है उस स्ट्रक्चर में। तो अब क्या होता है किसी हम ओवर टैंक की जब बेयरिंग कैपेसिटी इन्वेस्टिगेशन के लिए फील्ड पे आते हैं, तो अब हम जब लेबोरेटरी में टेस्ट रिजल्ट तैयार होने के बाद उसको कैसे डिसाइड करते हैं वेदर टू प्रपोज एनुलर राफ्ट और फुल राफ्ट। दिस डिपेंड्स अपॉन द बियरिंग कैपेसिटी रिक्वायरमेंट। चूँकि हमें रिवर्स केस में एंटिसिपेट करना पड़ता है कि स्ट्रक्चर का जब वेट प्लस वेट ऑफ पानी हम निकालते हैं तो कैपेसिटी का उस डायमीटर में जो हम प्रपोज करने जा रहे हैं क्या कैपेसिटी हो जिससे वो स्ट्रक्चर सस्टेन कर ले और स्टेबल रहे और ऑथेंटिक रहे, मतलब हर तरफ से सेफ रहे। द ग्राउंड वाटर टेबल पोजिशन, द एन वैल्यूज, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट वैल्यूज, द काइंड ऑफ स्टार्टा। अब यही अगर सैंड और क्ले स्टार्टा है या इंटरमीडिएट कॉम्बिनेशन है, इन सब पे चीज़ें वेरी करती हैं व्हाई एंड हाउ, ये मैं आपको यहाँ बताता हूँ। बेसिकली द बियरिंग कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन द शियर एंड द सेटलमेंट क्राइटेरिया, बट इन केस ऑफ मैसिव ओवर टैंक्स वहाँ जनरली आप पाएंगे कि सेटलमेंट क्राइटेरिया से हमारी बियरिंग कैपेसिटी गवर्न होती है। बियरिंग कैपेसिटी इज गवर्न बाई सेटलमेंट क्राइटेरिया। अब क्या होता है कि हमें जब सेटलमेंट क्राइटेरिया पर चलते हैं हमारा IS 1904 1986 प्ले में आता है, तो इसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि एनुलर राफ्ट या प्योर सैंड हो या सैंड और क्ले हो, इस केस में हमारी परमिसिबल सेटलमेंट लिमिट थोड़ी कम गिवन होती है कोड में। तो इस हिसाब से हमारी बियरिंग कैपेसिटी के डिसीजन में हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। अदरवाइज यही हम RCC फुल रैफ्ट दें, रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट फुल रैफ्ट, और ये प्योर क्ले में जाए तो हमारी परमिसिबल सेटलमेंट लिमिट कोड में इस कोड में ज़्यादा है।
तो हमें यहाँ बेयरिंग कैपेसिटी का एडवांटेज लेना होता है। तो हमें क्या होता है, वी हैव टू जुडिशियसली डिसाइड कि हमें वहाँ एनुलर राफ्ट या फुल राफ्ट, अगर इकोनॉमिकल देखना है तो पहले हम एनुलर राफ्ट सजेस्ट करेंगे, फिर फुल राफ्ट का ऑप्शन देंगे। अगर दोनों नहीं हो पाते तो हम पाइल फाउंडेशन की तरफ जाएंगे और इसको रिकमेंड कर देंगे साइड। अब सिमिलरली हमें सम्प्स, सेमी संक सम्प्स या अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स में भी इसी क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ता है फॉर डिसाइडिंग द नंबर ऑफ बोरोज एंड द डेप्थ ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में अपने स्लाइड में बोर्ड के बताना चाहते हैं। इफ़ यू फाइंड एनी लूज सॉइल और फिल्ड अप सॉइल एट द साइट, प्लीज decide on the depth of investigation accordingly and increase that depth at the site. So now friends, I would like you to say that the fourth lecture of my series is over, और next structure में फिर हम किसी structure के बारे में कैसे depth of number of boroughs decide करें वो आप लोगों को बताएंगे। होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। Dear friends, kindly subscribe to my channel. Thank you.